गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को सुने। आज का वचन Psalm 22, 29 to 31. All the rich of the earth will feast and worship. All who go down to the dust will kneel before him. Those who cannot keep themselves alive. Posterity will serve him. Future generations will be told about the Lord. They will proclaim his righteousness, declaring to a people yet unborn, he has done it. Done it. Amen. आप देखें जो वर्ष हैं मसीह यीशु के आने के बाद, उसके जी उठने के बाद, उस आने वाले समय की ओर देखते जहाँ वो आएगा, और जो है वो लोग जो जिन्हें छुड़ाए हुए लोग हैं, रिडीम्ड भी कहा जाता है, उनके बीच में 1000 साल राज्य करेगा। आप देखें वहाँ एक बोझ का वर्णन है। लोग जो हैं बताएंगे एक दूसरे को क्या उसके साथ परमेश्वर ने किया है। आप देखें टुडे क्रिश्चियंस ऑल्सो व्हेन वी सेलिब्रेट होली कम्युनियन इन 1 Corinthians chapter 11 verse 26. 1 Corinthians 11:26. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. आप देखें जो पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय है, वहाँ पे 3 बातें हैं। पहला है सेलिब्रेशन, कॉमेमोरेशन एंड प्रोक्लेमेशन। आप देखें जो 3 बात हैं, तीनों जो एक्शन हैं, एक्टिव वर्ब हैं। आप देखें क्या है वहाँ, सेलिब्रेशन है, कॉमेमोरेशन है, और जो है वो है प्रोक्लेमेशन। यहाँ भी बात लिखी गई है वो है जो है eagerly they tell others. भजन 22 उसके 2 और 4 पद में क्या लिखा है देखिए। भजन 22 2 से 4 पद। 2 से 4। भजन 22 2 से 4। Psalm 22, 2 to 4. My God, I cry out by day, but you do not answer. By night, but I find no rest. Yet you are enthroned as the Holy One. You are the one Israel praises. In you our ancestors put their trust. They trusted and you delivered them. अब इस बात को देखें जेम्स चैप्टर 2 वर्स 9 में। यहाँ एक फेलोशिप मील। James 2, 1 to 4. 1 to 4, no? Yeah. My brothers and sisters, believers in our glorious Lord Jesus Christ, must not show favoritism. Suppose a man comes into your meeting wearing a gold ring and fine clothes, and a poor man in filthy old clothes also comes in. If you show special attention to the man wearing fine clothes and say, "Here is a good seat for you," but say to the poor man, "You stand there," or "Sit on the floor by my feet," have you not discriminated among yourselves and become judges with evil thoughts? आप देखें जो बात है वो है क्वालिटी की, मील की। आप देखें जो बात यहाँ कही गई है वो है एक मील है जो होने वाला है, पर्व है, जिसका वर्णन पाते हैं भजन 22 उसके 22 से 24 में। Psalm 22, 22 to 24. And it says, I will declare your name to my people. In the assembly, I will praise you. You who fear the Lord, praise him. All you descendants of Jacob, honor him. Revere him, all you descendants of Israel. For he has not despised or scorned the suffering of the afflicted one. He has not hidden his face from him, but has listened to his cry for help. आप देखें यहाँ लिखा है one generation will tell other generation. आप देखें जब पौलुस ने तीमुथी को कमेंट किया, उन्होंने कहा कि तू जा औरों को सिखा। दूसरा तीमुथी उसका 3 अध्याय 15 पद। Okay. 2 Timothy 3:15. And how from infancy you have known the holy scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. And also 2 Timothy 1:5 says,
I'm reminded of your sincere faith, which first lived in your grandmother Louise and in your mother Eunice, and I am persuaded now lives in you also. आप देखें, मैंने आपको जो है तिमोथी का दिन करते समय बताया था। तिमोथी जो है वो जो है एक ऐसी फैमिली में से आता था कि माँ थी यहूदी थी, बाप जो उसका नानी था, उन्हें शिक्षा पाई उससे, अपनी नानी लुईस से। आप देखें उसे पौलुस कहता है कि जो बता सिखा। आप देखें उसे पहले नए नियम में लूका 1:44 में एलिजाबेथ ने बताया था, मरियम बताई एलिजाबेथ को, लूका 1:44। Luke 1:44. As soon as the sound of your greeting reached my ears, the baby in my womb leaped for joy. आप देखें एक जनरेशन जो है उसी जनरेशन को बता रही है। माँ बाप जो आप हैं अपने बच्चों को सिखाइए, और दादा दादी हैं अपने दादा पोतियों को सिखाइए। आप देखें पद 31 में क्या लिखा है? पद 31 of Psalm? 22। Psalm 22 verse 30. Posterity will serve him. Future generations will be told about the Lord. आप देखिए जो वो है भविष्य की जो जातियां हैं, वंश है, वो जातियों को बताएंगे, प्रोक्लेम। आप देखें, आप नए नियम में जो आगे दी गई है वो है बताना है। आप देखें भविष्य मसीह जब उस पे था, मत्ती उसका 27वां अध्याय 40 पद। Matthew 27:46. About 3 in the afternoon, Jesus cried out in a loud voice, Eli, Eli, lama sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? आप देखें यहाँ जो वर्ड आया है मूल यूनानी में वो है टेटेलस्टाई, फिनिश्ड, कंप्लीट। जो कुछ काम तूने मुझे दिया था पूरा हुआ है। मित्रों, आपको मुझे भी आगे मिली है। भाग्य क्या है? मत्ती 28 से 19। आप जो हैं जाओ बताओ जो बात तुमने उससे सीखी है उन्हें और को माना सिखाओ। ग्रेट कमांड। आप देखें जो कमांड है वो ये है जो हमें हमारे साथ हुआ है, हमें औरों को भी बताना है। जो खुशी हमने पाई है हमें भी औरों को भी बताना है। वो आपको बात मालूम होगी ना, जो कोड़ी थे वो गए, वो जो छावनी में गए खाने लगे गपागप, लेकिन वो बाद में उन्हें पछतावा हुआ, अरे हम ये क्या कर रहे हैं, आज बड़े उद्धार का दिन है, बड़े समाचार का दिन। हम अगर यहाँ रहे तो मारे जाएंगे, शहर में गए तो जाके हम भी मारे जाएंगे, इसलिए अच्छा है हमें जाके समाचार है जाकर देना है। वो गए और आप देखें पूरी जो लोग थे उन्होंने जो है खुशी का समाचार ग्रहण किया। ये हमारी भी जिम्मेदारी है, हमें जाकर जो है औरों को बताना है। आइए प्रार्थना करें, हमारी सहायता करें, हम जो है समाचार जो हैं औरों को सुनाएं। आइए प्रार्थना करें। थोड़ी हमारी प्रार्थना है हमारे अपने लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारी जो पीढ़ी है उनके लिए। हम जो है आपके समाचार को जो है औरों को सुनाएं, हम पर दया करें। हमारी प्रार्थना को आप सुन लीजिएगा, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ हमें से हर एक के साथ होता रहे। आमीन, आमीन, आमीन।